کہ 1 سال پہلے کوئی چیزیں ہوئیں، 1 سال بعد یاد آ گئی، چلیں جی یاد آ گئی. اب یاد آنے کے بعد 1 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ کی پھر مداخلت ہوئی کل پرسوں کے دن میں. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی، کیونکہ مداخلت کی اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ورنہ تو میں بھی فون اٹھا کے کہوں کہ جی مجھے کسی جج نے کہہ دیا ہے کہ قتل کر دو، تو اس کے اندر کوئی 302 میں کسی کا ٹرائل تو نہیں ہو جائے گا. زبانی تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر آگے آپ بڑھیں تو کوڈ آف کنڈکٹ 2 کے تحت، آرٹیکل 2 کے تحت اس میں ججز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، اچھی زبان ہونی چاہیے، کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوشش ہونا چاہیے کہ ایک کنفرنٹریشن ہے، ایک سچویشن چل رہی ہے جس کے تحت بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے. تو بھائی شواہد دینا، شواہد دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بٹ اگر شواہد نہیں ہیں اور یہ جو آپ نے بتایا یہ بھی زبانی ہے اور رائٹنگ میں نہیں ہے، تو پھر تو مسئلہ ہے. تو یہ مسئلے کا اب حل یہی ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ آپ اتنے بڑے آئینی قانونی انصاف کے عہدوں پہ بیٹھے ہیں تو اس کو کلیریفائی کریں تاکہ یہ منطقی انجام تک پہنچے. اب آ جائیں جی کہ یہ کیمپیننگ، سوشل میڈیا کیمپیننگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کس نے کس کو روکا آج تک؟ سستی روٹی غریب کے لیے ہوئی سٹے آرڈر، جب 5 روپے سے 40 روپے تک روٹی کے کوئی سٹے آرڈر. نسلہ ٹاور سڑک پہ بلبلا اٹھے ہیں، غریب بچے برباد ہو گئے، ان کے ماں باپ، کوئی سنوائی نہیں. فیصلہ تھا کہ مجھے اس وقت کے فیصلہ دینے والے کا کہ مجھے پرانا کراچی چاہیے. ریکارڈ ایکٹ میں اربوں ڈالر کا نقصان عدالتی نظام نے کر دیا. اربوں ڈالر بھیک مانگ رہے ہیں ہم ڈالرز کی. کیا ہوا؟ 46 سال بعد آپ بھٹو صاحب کی بتا رہے ہیں پھانسی ہو گئی تھی، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں پتا تھا. سمبولک سزا کیا دی گئی؟ زرداری صاحب کو 14 سال جیل. کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے تحت یہ ہوا؟ نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر بلیک لا ڈکشنری کے تحت نااہل کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی گورنمنٹ پھر چھٹی والے دن کھول دی جاتی ہے. پریزن مین پابند کیا جاتا ہے کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیا. چلیں جی. پی آئی اے سٹے آرڈر، روٹی سٹے آرڈر، 2700 ارب روپے سٹے آرڈر. نسلہ ٹاور گرا دو، اس کو جلا دو، اس کو مار دو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب تک ہم اس طرح چلتے رہیں گے؟ اگر لیجسلیٹر کسی دوسری دوری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا اصول، تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر، اس سیاستدان کو آپ دوسری سٹیزن شپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں. تو پھر جج دوہری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے؟ سوال ہے نا. آپ کے لیے شراب حلال ہے، ہمارے لیے شراب حرام ہے. مثال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اگر لیجسلیٹو ہاؤسز، اسمبلیاں قانون بناتی ہیں اور میاں صاحب کو نااہلی کا کیس اس قانون سازی کے تحت اس پہ ان کو نااہلی سے ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ٹائم بار تھا، نااہلی ختم کر دی جاتی، کوئی قانون سازی کی قانون دان نے، قانون کے لیجسلیٹرز نے، ہم نے ایز سینیٹرز ایز ایم این ایز. تو پھر ہمیں یہ قانون بھی بنانے پڑیں گے. سنگل آؤٹ کر کے جو
पाकिस्तान का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले करने जा रहे हैं प्रोग्रेसिव SIFC के प्लेटफॉर्म से, उस झंडे के नीचे एक आइन और कानून और हमने एक डंडा भी दिया है उनको, और उस डंडे का काम यह है कि बैरूनी अंदरूनी साजिशें, इंतशार और दुश्मनों से बचाया जाए, क्योंकि ये 90%, 95% एक इदारा रह गया हमारे पास जिसके अंदर डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी है। फरिश्ते वहां भी नहीं है, लेकिन 5%, 10% ये वाहिद एक इदारा रह गया। तो अगर उस चीज के लिए इंतशार, दुश्मनी, बुग्स, वेनम, मुल्क दुश्मनी, अंदरूनी बैरूनी के लिए अगर आपको आइन और कानून ने उस झंडे तले डंडा दिया है, उसके अंदर प्रोटेक्शन भी हम ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि बॉर्डर्स पे फौजी और पुलिस वाले अपनी जानें देंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि वो सैचेंट के अंदर प्रोटेक्शन देंगे और अपनी उंगलियां गलवा देंगे, शहादतें देंगे और हम उनका तमस्कर उड़ाएंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है सब कुछ कि जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका तमस्कर उड़ाया जाए, उनका मजाक बनाया जाए, उन पे इल्जामात लगाए जाए, और इल्जामात सच्चे हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन सच्ची हैं कि आपने रिकॉर्ड पे कोई चीज दी हुई है, शवाहिद रखे सामने, तराजू के अंदर शवाहिद रखें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर शवाहिद नहीं है, जैसे इस खत का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, TCS से भी नहीं मिल पा रहा, हर चीज का जवाब मिल पा रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा कि भाई आपने रिकॉर्ड का हिस्सा, जब आप जज बनने से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब अतर मिन्ना साहब को आपने जो रिकॉर्ड दिया था, आपके कल परसों के खत के मुताबिक भी सबूत 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 और सबूत, कागजी कार्रवाई, कागज पे हमें देखना है, हमें बताया जाए। बहुत ज्यादा मजाक हो गया पाकिस्तान के साथ, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया पाकिस्तान के साथ। आप इन सब चीजों को एड्रेस करें ताकि ये अनरेस्ट, ये शक व शुबात खत्म हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस माजराई से दूर हो सबके सब। पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव और तरक्की की तरफ, इकोनॉमिक ब्लीडिंग से हमें बचाना है। ना करें ये सारे काम, इन कामों का कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल कदम लगाएं, लॉज बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, सारे पाकिस्तानियों के लिए। मेरी वालदा जो इस दुनिया में नहीं रही, उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह मियां, वो डेथ बेड पे थी, तब असूली, प्रिंसिपल्ड, ईमानदार, दलेर, इंसाफ करने वाले, फैसला सुनाने वालों ने मुझे पाबंद किया, पेनल्टीज लगाई, पगड़ियां उछाली, मेरी मां इस दुनिया चली गई। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे, डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे, डबल इज्जत देंगे, इतराम करेंगे, डबल इतराम करेंगे, बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। क्लैरिटी है, स्ट्रेट हूं मैं, ना मुझे लपेट सपेट के बात करनी नहीं आती। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। ये बॉर्डरों के ऊपर जो शहादतें खून दे रहे हैं, उनकी वजह से हम यहां बैठे हुए हैं, और यहां बैठ के उन पर तमस्कर, कीचड़, इल्जामात और झूठ और फरेब, हर चीज में उनको इन्वॉल्व ना करें। अगर उनकी कहीं इन्वॉल्वमेंट है, सबूत पेश करें, हम खड़े होंगे। बेलें आप देते हैं, सवाल उनसे हम कर रहे हैं। जेल आप देते हैं, सवाल हम उनसे कर रहे हैं।
آپ بیل نہ دیں, کوئی جیپ میں آ کے بٹھا کے لے جائیں, وہ جیپ کے آگے آ جائیں گے. کلیئرٹی رکھیں. اس نے کہا, پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں, کھل کے آگے بات کریں. میں بہت کچھ جانتا ہوں, بہت کچھ سمجھتا ہوں, بہت سارے راز ہیں, بہت سارے شواہد ہیں, بہت سارا ہوم ورک ہے, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان ہے اطہر منیلہ صاحب سے, کیونکہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے, آزمایا ہے. میں تو اپیئر نہیں ہوا, لیکن جو پروسیڈنگز ہوئی وہ بہت اصول پسند ہے. میرا گمان ہے کہ وہ سہ سرخیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے, ثبوتوں پہ کرتے, لکھت پڑھت پہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے. میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی, نہ ان کے بچوں کے لیے. میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا. تو پھر اطہر منیلہ صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج سے اتنی بڑی مسٹیک تو نہیں ہو سکتی. سوال دو اٹھ جائیں گے. اگر لکھا ہوا ہے تو ختم, کانسپریسی فنشڈ, کنٹروورسی اوور, جو ہم چاہتے ہیں, تاکہ جج اپنی ریپوٹیشن بلیم لیس ہوئے بغیر, کاشس ہوئے بغیر, کاشسنس کے ساتھ, اللہ کے ڈر سے, اپنی اچھی زبان کے ساتھ, بغیر پگڑیاں اچھالے اپنے منصب پہ رہے, اور ہمیں ڈر نہ ہو کہ فیصلے میں اتنی کوئی مسٹیک تو نہیں ہو جائے گی کہ کہیں ریکارڈ پہ چیز ہے یا نہیں, ایک کیئرلیسنس تو نہیں ہے. اور اگر الزام کے تحت یا خدا نہ خواستہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور زبانی ہے اور جج بننے سے پہلے کا ہے, اور چیف جسٹس صاحب اس وقت اطہر منیلہ صاحب جج سے چیف جسٹس اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپرکشنز ہیں, کوشچننگ ہے, سوال ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوگا. ان سب کو ہمیں اب ایڈریس کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. مجھے اس سے گمان نہیں ہے, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ اگر بابر ستار صاحب کسی چینل پہ کبھی تجزیہ دیتے تھے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, غالباً جیو, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آرٹیکلز لکھتے تھے, وہ ان کی زندگی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیول نیشنل سے بھی. لیکن اصول اگر میرے پہ ہے تو آپ پہ بھی لاگو ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ سامنے بیٹھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قانون کچھ اور ہوگا, میرے لیے قانون؟ اگر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کا جواب دیں. آپ کی اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جج حضرات, جس کے اوپر ہمارا تکیہ ہے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں, تو پھر جن جن پہ آپ نے الزام لگایا سمیت انٹیلیجنس اداروں پہ ثبوت ہمیں فی الفور چاہیے, تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم عدالتی نظام جو زبردست طریقے سے 141 نمبر پہ ہے اور جو چھکے چوکے لگ رہے ہیں, 300 بھی کراس کر جائے گا, اس کو ہم نے ریورس گیئر لگانا ہے. 140, 138, 125, 100 ریورس گیئر لگانا ہے. ان لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کرے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا. میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوا ہوں, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوا ہوں, جسٹس چیف جسٹس بندیال صاحب کے سامنے پیش ہوا ہوں. میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں اپنی, کہ آپ جب ایسے لوگ, ایسے جج حضرات کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا سینہ اتنا بڑھ جاتا ہے. ان کے قلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں, کر سکتے ہیں, صحیح یا غلط. لیکن جس طریقے سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں, جس طریقے سے پھلدار طرف جھک کے بات کرتا ہے, فرم ہوتے ہیں, پگڑی نہیں اچھالتے, قانون پہ بات کرتے ہیں, سہ سرخیوں کا فکر نہیں کرتے, رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے, اپنے آپ کو بکنے کے لیے تیار نہیں کرتے, کہ میرے جیسا آدمی جو پریپیئرڈ نہ ہو
वो जाए, उससे 1 कदम बोला जाए, मैं 10 कदम आगे बढ़ जाऊं। यही काम है सजा और जजा की कुर्सी पर बैठने वालों का, कि जब सजा हो तो सजा से जब बंदा बाहर निकले तो ये सोचे मेरे साथ इंसाफ हो। यहां ये डर ना हो कि अगर मुझे कोई लाइक नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा केस मेरिट पे होगा, तब भी अपनी पसंद नापसंदीदगी के ऊपर फैसला कर देगा। इन सब चीजों को प्लीज एड्रेस करें। इन सब चीजों को अब बहुत देर हो गई, प्लीज मुझे इन सब चीजों का जवाब 19A के तहत जो चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऑर्डर के मुताबिक है। और मैं आखिर में उन 2 मीडिया हाउसेस को भी बताना चाहता हूं कि वो दिन चले गए जब आप 2 आइन और कानून के ठेकेदारों को मिला के सियासतदान और दीगर को उठाते बिठाते थे। अल्लाह का शुक्र है, मैं अब आपको बताऊंगा कि उठाना बिठाना, उल्टा करके लिटाना किसको कहते हैं। पगड़ियां आप कोई नहीं उछाल सकता, प्रोपेगेंडा मनफी इंतशार कोई नहीं फैला सकता। थैंक यू वेरी मच। तर्जुमान बन रहे हैं, जिनकी आप दिफा कर रहे हैं, उस मुदाखलत का जो खत आया उसके संदर्भ में। जनाब अली, मैंने सवाल मिस कर दिया, माफी चाहता हूँ। ये कर रहा हूँ कि आपने भरपूर दिफा किया है इंटेलिजेंस एजेंसियों का, जिनके ऊपर मुदाखलत का इल्जाम जजेस ने लगाया है, तो अभी आपने साथ में पगड़ियों फुटबॉल बनाने की धमकी भी दे दिया। ये धमकी आपकी तरफ से समझी जाए बतौर तर्जुमान, या उनकी तरफ से समझी जाए? देखिए जी, अगर आप जो सवाल कर रहे हैं आपके साथ भी नाजायज़ होगा या जायज़ होगा, खड़े होंगे ना हम। मैंने तो आपको किसने कहा? मेरे वाले साहब ने आपको आके कहा है कि मैं तर्जुमान हूँ किसी का। मैं तो एक सेनेटर हूँ, लेजिस्लेटर हूँ, कानून बनाता हूँ, कानून की तशरीह भी कराऊंगा, कानून को इम्प्लीमेंट भी कराऊंगा। अगर मेरे बनाए हुए कानून पे मियाँ साहब की नाअहली कानून दान की वजह से चेंज हो जाती है, मैंने तो तराज नहीं किया ना, कानून था। तो अगर कानून प्रोटेक्शन देने के लिए बनेगा, जो पाकिस्तान का झंडा लेके आगे चल रहे हैं, चाहे वो आप हो, पुलिस वाला हो, मैं हूँ, मेरा भाई हो, मैंने तो किसी का आपको नहीं कहा। किसने आपको कह दिया कि मैं तर्जुमान हूँ? या आप उस तरह मुझे ले जाना चाह रहे हैं कि मैं तर्जुमान ही कर रहा हूँ? ना मैंने कोई धमकी दी है। मैंने आपसे कहा आप मुझे गाली देंगे तो मैं आपको 2 गाली दूंगा। आप मुझे प्यार करेंगे, मैं आपको डबल प्यार करूंगा। आप मुझे बदमाशी करेंगे, मैं डबल बदमाशी करूंगा। मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ। मेरी इसमें कोई जाती नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आपके लिए शराब हराम है तो मेरे लिए हलाल नहीं हो सकती, इसमें मुगासला भी नहीं है। आपने कहा कि आइन के तहत, आइन ने कहीं नहीं लिखा कि फौज बॉर्डर पे जाने देगी या सियासी नौकरियां कटवाएगी। एक तो बता दें आइन के तहत फौज की जिम्मेदारियां क्या हैं, और दूसरे कि क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है फौज या किसी भी कर्मचारी को कि वो लोगों के बेडरूम तक में झांके? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और देखिए, प्राइवेसी इंटरवीन करना किसी का हक नहीं है। कोई ना कोई इदारा कर सकता है, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते, ना कोई और कर सकता है। कंडेम करते हैं इसको। सोशल मीडिया में जो कैंपेनिंग्स हो रही है, कंडेम करते हैं इसको। लेकिन सर, आपके ऊपर बात आएगी तो आप नोटिस ले लेंगे, मेरे ऊपर बात आएगी तो नोटिस नहीं होगा। मेरी भी तो माँ दुनिया में नहीं है। मेरे लिए भी कर लेते, किसी और के लिए कर लेते। जिनके बच्चे रेप हुए हैं उनके लिए कर लें, जो सिसक के मर रहे हैं उनके लिए कर लें। रोटी सस्ती हुई है तो मुझे आपको शायद फर्क ना पड़ता, अल्लाह का एहसान है हम पर। लेकिन जिनको अगर 1 रोटी की जगह 2 रोटी मिल रही है तो उसमें स्टे ऑर्डर तो ना देना। अच्छा सर, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी पगड़ियां उछालेंगे तो हम आपकी डबल पगड़ियां उछालेंगे जी। बाबर सत्तार ने तो एजेंसीज का जिक्र किया है कि एजेंसीज ये सब कर रही हैं, मुदाखलत कर रही हैं। आप कह रहे हैं हमारे ऊपर, तो आप एजेंसीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं मैंने इंडिविजुअल आपको जमात की? मैं आपको, मेरे ख्याल से शायद मेरी उर्दू में इतनी क्लैरिटी नहीं है, आपको शायद लग रहा होगा मैं फ्रेंच में बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आप समेत आपके, अगर आप मेरी पगड़ी उछालेंगे, मैं आपके पगड़ी का फुटबॉल बना दूंगा। इसमें इन जनरल सबके लिए, इन जनरल एट लार्ज सबके लिए, कोई मीडिया हाउस, कोई लीक्स, कोई डिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड, कोई जज, कोई फौजी, कोई पुलिस वाला, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई मीडिया, कोई बिजनेसमैन पगड़ी नहीं उछलेंगे, ना उनकी ना हमारी। फैसल साहब बताइएगा, आपने कहा कि अब्दुल अब्दुल्ला साहब के हवाले से बड़ी चीजें लिस्ट गिनवाई और का गुमान है कि आपको उन पर यकीन नहीं है। दूसरा, दुबई लीक्स के हवाले से आपने 2 दिन पहले हमन मीर के प्रोग्राम में कहा कि एक नॉन लीक्स के तस्क आने लगा था कि आपको पहले। देखिए, आज जो है मैं फोकस इसके हूँ, मेरे ख्याल से
वो जो अतर मानुल्लाह साहब के हवाले से तहलका आपका और गुमान है, तहलके को हल्के में जो बदल दिया, वो तहलका तो नहीं रहा, हल्का रहा, जो भी है, और उसका तसलसल कुछ भी नहीं है। और अगर आपने यहाँ मिसाल के तौर पे पीटीवी का बोर्ड लगा हुआ है, अब आप कहें ओह 60 ममालिक ने पीटीवी निकाल दिया, तो भाई पीटीवी का बोर्ड लगा था, अंधे को भी नजर आ रहा है। अगर मैंने कुछ डिक्लेयर की तो आपने निकाल लिया, तो मेरी डिक्लेरेशन से डिक्लेयर जो मैंने कागज़ दिया, कागज़ जो कागज़ में लिख दिया वो आपने बता दिया। तो लेकिन इसकी कॉनेटेशन और इसकी सारी गेम जो है, वो गेम मैं कल आपके सामने एक्सपोज कर चुका हूँ। आपने कहा कि आप कानून बनाते हैं और आप इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। आपने कहा जो मुझे धमकी देगा मैं उसे धमकी दूंगा। क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? अदालतें हैं, हमारे सिस्टम में। मैंने कहीं भी धमकी का लफ्ज़ नहीं कहा। मैं बड़े आपने कहा पगड़ियां उछालूंगा, आपने कहा उल्टा लिटाऊंगा। नहीं, मैंने आप गलत देखिए मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपनी बात से नहीं हट रहा। मैंने ये कहा कि आप मुझसे प्यार से बात करेंगे, मैं आपसे डबल प्यार करूँगा। आप मुझसे एहतराम से बात करेंगे, मैं डबल एहतराम करूँगा। आप मुझे इज़्ज़त देंगे, मैं आपको डबल इज़्ज़त दूंगा। आप मुझसे बदमाशी करेंगे, मैं अपनी वसात में डबल बदमाशी करूँगा। अब आप बदमाशी करेंगे तो जब आप गैर कानूनी चार्ज पे आएंगे तो मैं उस वक्त जवाब दूंगा कि मैं कानूनी बदमाशी करता हूँ, मैं मॉरल बदमाशी करता हूँ। स्पेसिफिक ना पकड़े ना, इन जनरल एट लार्ज जो इशू है उसकी तरफ रहे। जस्टिस साहब, आपको गुमान है कि वो किसी किस्म का ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते, वो इंसाफ के साथ जो है इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे ये जो सब हो रहा है इतने अरसे से, इसके पीछे है कौन? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, खुश कर दिया आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर। यही तो ढूंढ रहे हैं कि ये कौन सा एक इंतशारी टोला है जो मुल्क को सब मिलकर, इसमें एक नहीं है, इसमें दो नहीं है, इसमें एक कंसोशियम है जो ये इंतशारी टोला लेके पाकिस्तान को उस डगर पे जा रहा है। इसीलिए तो मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आप सब, हम सबको मिलके खड़े होकर, अब हमें ये नहीं सोचना कि आपके घर में या मेरे घर में आपके घर में कोई मसला होगा तो आपकी माँ बहन बेटी मेरी माँ बहन बेटी होगी, मेरे मुखालिफ भी होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप पीपल्स पार्टी के साथ कुछ होगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, पीटीआई के साथ खड़ा होगा, मैं साथ खड़ा हूँ। इसका मतलब है कि आपके डिफरेंसेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन माँ बहन बेटी या सैंटिटी उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे मुखालिफ हैं, आप मेरे साथ। हमें यूनिटी के साथ चलना है, इस इंतशारी टोले से पाकिस्तान की जान छुड़ानी। वाडा साहब, आपने कहा है कि आईन और कानून में, आपने कहा है कि आईन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आईन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फौजी या पुलिस वाला जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो है वो शहीद होगा या गोली खाएगा। तो ये आईन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि वो कारोबार करेंगे, बिजनेसेस करेंगे और प्रॉफिटेबल होंगे? वो भी देखो, अगर आपको ये लग रहा है, उसके भी बिल्कुल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल इसको अग्री करते हैं, इसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ और गैर कानूनी काम उसके अंदर हो रहा है, आप निशानदेही करें, सबूत रखें, हम आपके साथ हैं। कोई इसमें दो राय तो नहीं है। सर ये बताएं कि आपने बात की है, आपने बात की है कि हेडलाइंस के लिए जो है बहुत से काम हो रहे हैं और हम लोग भी देखते हैं, लेकिन एक आम आदमी की अगर बात करें, गरीब की बात करें तो उसमें हमें ये चीज़ कमी नजर आती है। तो कल जो चीज़ होने जा रही है, खान साहब को दोबारा जो है ख्वाहिश पे लाया जा रहा है वीडियो लिंक पे, तो क्या वो मामला भी तो हेडलाइंस के लिए तो नहीं, किधर उसका बैकग्राउंड ये तो नहीं कि वो भी कोई ख्वाहिश ऐसी हो कि वो भी हेडलाइंस की ज़ीनत बने? देखिए, मैं तो उस पर भी कॉमेंट नहीं कर सकता, कल जब होगा तो उसकी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आमिर इलियास राना साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्यूरो चीफ हैं, मेरे उस्तादों में से। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जस्टिस अतर मिन्ना साहब ने जब बेल दी नवाज शरीफ की, तो उन्होंने 50-60 रिपोर्टर्स को बुला के कहा कि भाई मेरे बच्चे भी हैं। मैंने नहीं कहा, इलियास राना साहब ने कहा। अब ऐसी बात अगर है, और इलियास राना साहब हमारे उस्तादों में से, उनका अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है, बड़े बर्बाद आदमी हैं, उनकी आप सब भी बहुत इज्जत करते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस के ऊपर जवाब तलबी तो बनती है। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम हक के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरा क्रिटिसिज्म भी चलता है, लेकिन मेरी ज़ाती लड़ाई आप लोगों से नहीं है। डिसएग्री टू एग्री हम करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आपका इंसाफ का, आइन और कानून के तहत इंसाफ अगर पट्टी पे नहीं आएगा, पाकिस्तान कभी पटरी पे नहीं चढ़ सकता। आप इसमें तेल के कुएं पैदा कर दें, आप दूध की नहरें बहा दें, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा फैसल बाबदा साहब, आप भी इस वाक़े में एज अ पार्लियामेंटेरियन
ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पैगाम कुछ मखसूस जजेस के लिए है, पॉलिटिशियंस के लिए है, मीडिया के लिए है, या सबके लिए है जो क्रिटिसिज्म करते हैं? और दूसरा सवाल, ग्रैंड डायलॉग की बात अब पार्लियामेंट में भी हो रही है, राना सनातन ने भी ऑफर की, क्या आप इस हक में हैं कि ग्रैंड डायलॉग अब होना चाहिए? देखिए, मैं बड़ा स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ, और मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा स्पेसिफिक 2 जजेस बाबर सत्तार साहब और अतर मिल्ला साहब के लिए की है कि मैंने सवाल किया है, 15 दिन हो गए हैं, 19A के तहत मुझे जवाब दें, और जवाब जब आएगा, 15 दिन हो गए, जब बाकी खिताब हो रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, हेयरिंग चल रही है, वहाँ 2 लाइन का जवाब दे दें कि भाई ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर रूम नंबर 42 के अंदर जाएंगे तो फाइल नंबर 34 के अंदर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, बात खत्म, चैप्टर क्लोज, वक्त दिया, ठीक है, अगर नहीं YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।